Am I audible to you properly? Okay, thank you. Okay, so अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्ट का आपके मॉड्यूल में जो 3 क्वेश्चंस दिए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे. पेज नंबर 6.25, पेज नंबर 6.25, क्वेश्चन नंबर 1. ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करके we'll end up our lecture for today. On 1st Jan 2016, A sells goods for rupees 10,000 to B and draws a bill at 3 months for the amount. B accepts it and return it to A. On 1st March 2016, B retires his acceptance under a rebate of 12% per annum. Record these transactions in the journal of B. A sells goods to B, मतलब B ने परचेज किया, तो डेट 1st Jan 16, 1st Jan 16 B ने परचेज किया है, तो एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग बताओ? Purchases account debited to A's account. Purchases account debited to A's account 10,000, being goods purchased on credit, and draws a bill at 3 months for the amount. B accepts it. A ने ड्रॉ किया, B ने एक्सेप्ट किया. तो फॉर एक्सेप्टिंग द बिल, what is the journal entry we pass? For accepting the bill, what will be the journal entry? The journal entry for that would be A's account debited to bills payable account. A's account debited to bills payable account 10,000. B retires on 1st March 2016. B retires his acceptance. So in fact, देखो बिल का डेट था अपना Jan 16 का और 3 मंथ्स का बिल था, फेब, मार्च, अप्रैल. तो उसने मार्च के बिगिनिंग में ही उसको रिटायर कर दिया, मतलब 1 month before the due date he has retired. It has been retired 1 month before the due date. तो रिटायरमेंट का एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड, rebate account debited to cash account debited, rebate account debited to bills received, sorry, bills payable account. बराबर है? Am I right? क्या हाँ बोलते रे तुम लोग? हम ड्रॉई के बुक में एंट्री पास कर रहे हैं. ओम, just don't be physically present, be mentally present. हम पेमेंट कर रहे हैं, ड्रॉई है हम. तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू
cash or bank account to rebate account. Bills payable debited 10,000. rebate का कैश का rebate का amount हमको ढूंढना पड़ेगा. 12% के हिसाब से rebate है, तो 10,000 into 1 divided by 100. 100 rupees आया rebate. And बैंक में कैश बैंक में अमाउंट आएगा 9,900. Do you get that? Being bill retired at a rebate of 12% per annum. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. कोई डाउट है? होल्ड ऑन. Now we go to question number 2. A draws upon bill. B, 3 bills of exchange of 3,000, 2,000, 1,000 respectively. A week later, his first bill was mutually cancelled. B, agreeing to pay 50% of the amount in cash immediately, and for the balance plus interest of rupees 100, he accepted a fresh bill drawn by A. This new bill was endorsed to C, who discounted the same with his bankers for 1,500. The second bill was discounted by A at 5%. This bill on maturity was returned dishonored. Noting charge being rupees 30. उधर printing mistake है. CA Institute भी printing mistake करता है. It is noting charge and not nothing charge. Noting charge being rupees 30. The third bill was retained till maturity when it was duly met. Give the necessary journal entries in the books of A. In the books of A. तभी पहले उसने बिल ड्रॉ किया. आप यहां पे दो अलग अलग अप्रोचेस ले सकते हो. जैसे 3 बिल है तो हम 3 बिल का अलग अलग एंट्री पास कर सकते हैं. बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2, बिल्स रिसीवेबल 3. मगर हम अभी प्रोफेशनल लेवल की स्टडी कर रहे हैं तो अलग अलग नहीं मेंटेन करेंगे. सेपरेट मेंटेन नहीं किया जाएगा. एक ही एंट्री पास किया जाएगा. तीनों बिल का एक ही एंट्री रहेगा. बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड. क्या जर्नल एंट्री रहेगा बताओ? डेट तो किसी का दिया नहीं है तो डेट के कॉलम में क्वेश्चन मार्क. तो पहला बिल उसने ड्रॉ एंड ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया तो ए इज द ड्रॉवर. तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? अरे भाई, बिल्स पेएबल टू बी कैसे हो गया पार्थ? ड्रॉवर के लिए वो बिल्स पेएबल कैसे हो गया? जर्नल एंट्री आएगा bills receivable account debited to
B. Bills receivable account debited to B's account. Being bill drawn and accepted. Total amount डाल दो 3 + 2 5 + 1 6 6,000 एक साथ पूरा. कोई डाउट उसमें? कोई डाउट है उसमें? आगे बोला है अ वीक लेटर फर्स्ट बिल वॉज म्यूचुअली कैंसल्ड. तो पहला बिल कैंसल हो गया, उसको कुछ किया था ऐसा बोला नहीं है, तो पहला बिल कैंसल. रिटेन्ड बिल कैंसल, जर्नल एंट्री रिवर्स हो जाएगा. एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? बीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल. बीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल. पहले बिल का अमाउंट कितना था? 3,000 था. पहले बिल का अमाउंट 3,000 था, राइट. तो बीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल 3,000 being first bill cancelled. B agreeing to pay 50% of amount in cash immediately and for balance plus interest. Balance plus interest है तो हटाओ, पार्ट पेमेंट इंटरेस्ट के साथ में नहीं हुआ. तो पहले पार्ट पेमेंट का एंट्री आएगा, कैंसलेशन के बाद पार्ट पेमेंट. पार्ट पेमेंट का एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट. उसने 50% अमाउंट पे किया तो अमाउंट 1,500. बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड. फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा. इंटरेस्ट का एंट्री क्या आएगा? बीज अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट. बीज अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट. कितना इंटरेस्ट है? कैलकुलेटेड दिया हुआ है उन्होंने 100. बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड. अभी न्यू बिल was drawn and accepted. तो न्यू बिल का एंट्री पास करेंगे. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. Bills receivable account debited to B's account 1,600. Being new bill drawn and accepted. आगे बोला है this new bill was endorsed to C. तो एंडोर्समेंट का एंट्री क्या पास करेंगे? एंडोर्समेंट का क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग? endorsees account debited to bills receivable account. So who is endorsee? C.
C's account debited to bills receivable account 1,600. Being new bill endorsed to C. अभी सी ने उस बिल का क्या किया हमको कुछ लेना देना नहीं है. सी ने उसका क्या किया हमको कुछ लेना देना नहीं है. अगर डिसऑनर होगा तो हमारा लेना देना आएगा उसमें. ओके. कौन था? फिर the second bill was discounted by A at 5%. तो अभी सेकेंड बिल डिस्काउंटिंग का एंट्री पास करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. अभी बिल्स रिसीवेबल सेकेंड बिल का अमाउंट 2000 है, तो 2000 इंटू 5%. तो डिस्काउंट का अमाउंट हम कितना लेंगे? 100 रुपीस पूरा लेंगे. यस और नो? क्यों? ये 5% तो पूरे साल का हो गया ना. 5% तो पूरे साल का हो गया. तो 100 रुपीस लेंगे क्या फिजा? आप 100 रुपीस लिख रहे हो. इज दैट अमाउंट करेक्ट और रॉन्ग? तो मेरा भी वही डाउट है ना पार्थ. मेरा भी डाउट वही है. यही तो इस प्रॉब्लम का ट्विस्ट है. दिखने के लिए सिंपल लगता है मगर है कॉम्प्लिकेटेड. ऋषभ बोलता है मंथ नहीं दिया है तो फुल ईयर ना. क्यों भाई, दिवाली है क्या? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में आंसर है उसका. Don't look at the solution and say 100 rupees, 100 rupees. I want logic. I know you people are very smart. आपको पता है मॉड्यूल में सॉल्यूशंस भी होते हैं डिटेल्ड में, तो वहां से आप आंसर बता रहे हो. लॉजिक बताओ मुझको. किसी को पता चला लॉजिक? कुसुम एब्सेंट है. प्रेजेंट है. अच्छा प्रेजेंट है. बताओ अभी आंसर. तेजल, वेद धनगर, अक्षिता अय्यर, shall I discuss? Very good Rishabh. This is the correct answer. हमको पीरियड ऑफ बिल कंसीडर करना ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि
परसेंटेज में पर एनम दिया नहीं है, इट इज इंडिकेटिंग दैट इट्स फ्लैट 5%। समझ रहे हैं? इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। अभी समझा? इसके लिए 100 रहेगा। डायरेक्ट नहीं, लॉजिक आपको यूज करना है, किस लॉजिक पे ये हुआ है। पर एनम वर्ड इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 5% फॉर फुल ईयर। 5% फॉर फुल ईयर। 5% बोला है, मतलब फुल ईयर का रहे या 1 मंथ का रहे, इट वुड बी 5%। दिस बिल वॉज returned dishonored on maturity. So on maturity, this second bill was dishonored. Discounted bill dishonored. Journal entry क्या आएगा? Drawee's account debited to bank account. Drawee है B. B's account debited to bank account. Noting charges add करके आ जाएगा. बिल का अमाउंट था 2000, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट था 30, 2030. बिल्स रिसीवेबल टू, सॉरी, B's account debited to बैंक अकाउंट. डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड है 2030. बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹30. कोई डाउट? आगे बोला है एंड द थर्ड बिल was retained till maturity when it was duly made. तो बिल ड्रॉ का एंट्री हो गया है, अभी वो मेड मतलब ऑनर हो गया, तो ऑनर का एंट्री आएगा, रिटेन्ड बिल ऑनर का एंट्री आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. बीइंग retained bill honored. अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक बिल और था अपने पास 1600 रुपीज का, जो नया बिल ड्रॉ किया, उसका मैच्योरिटी पे क्या हुआ उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसके मैच्योरिटी के बारे में हमको कुछ बोला ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? उसके मैच्योरिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम कुछ नहीं करेंगे उसको. डोंट एज्यूम इट वाज ऑनर्ड, डोंट एज्यूम इट वाज डिसऑनर्ड. बहुत पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं. सो व्हेन हियर द प्रॉब्लम इज साइलेंट, सो विल नॉट डू एनीथिंग. उसका ड्यू अभी तक नहीं हुआ है पेमेंट, तो हम लोग उसको कुछ नहीं करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया. कोई डाउट है उसमें?